Good evening, everyone. Please join fast. Within 1 minute, I will start. Good evening, बच्चों. Just a second. Okay. So today we are going to do a revision for thermodynamics. I hope आप लोग को बहुत अच्छा लगा था. Thermodynamics, in that we have seen system and surrounding. ठीक है. System क्या होता है? Any part of the universe which is selected to study the thermodynamic property. What is surrounding? Outside the system, everything is called as surrounding. Then we have seen different types of systems. Open system, closed system, isolated system. ये पता है आपको what is that? Then we have studied the properties of the system. ठीक है. What are the properties of the system? अपना intensive property and extensive property. We have seen different examples for that. ठीक है. After that, we have seen what is state function and what is path function. What is state function? जो सिर्फ initial और final state पे depend करता है. And what is path function, which depends upon the path followed to reach that state. उसके बाद आपने देखा what are state variables. जैसे कि pressure, temperature, volume जो होते हैं, they are called as state variables. ठीक है. I hope मैं इतना फास्ट जा रही हूँ. ठीक है ना सबको बच्चों? हेलो. हाँ आपको मैम. पढ़ के हाँ पढ़े हो ना तुम लोग, तो तुम लोग को थोड़ा ऐसे फास्ट हो जाए. मैं तो चाहिए तो थोड़ा स्लो बोलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने सोचा ज्यादा हो जाए इसके लिए. ठीक है. चलो. देन आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स. दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. दे आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स. ठीक है. जो आपके सिस्टम को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज एग्जैक्टली द पोजीशन ऑफ योर सिस्टम. देन वी हैव सीन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब कहा जाता है? व्हेन इट इज हैविंग when its state variables does not changes with time. Means ये जो आपका piston था, cylinder था, it is not changes with the time. Pressure, temperature are measurable. They are called as state variables, and that is called as thermodynamic equilibrium. Then we have studied different processes. What are those processes? Processes are transformation from one equilibrium to another equilibrium. That is called as process. We have seen different types of processes also. First is isothermal process. What is isothermal process? In which temperature of the system remains constant, but the internal energy will be zero. ठीक है. Next is isobaric system, in which pressure of the system remains constant. Isochoric system, in which volume of the system remains constant. Adiabatic system, in which there is no exchange of heat between system and surrounding. Then we have seen reversible process. What is reversible process? This process takes place in such a manner that at every stage you can return back to the original position just by increasing the driving force and opposing force. So driving force and opposing force is only infinitesimally greater than each other. और आपको मैंने ये भी बताया था कि for the reversible process n number of steps are involved. ठीक है. It is a step that is called as
रिवर्सिबल प्रोसेस. आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो बाद में देखा था हमने. एंड देन क्या देखा था, नेचर ऑफ हीट एंड वर्क. तो आपको याद होगा अभी, वर्क डन बाय द सिस्टम is always, बोलो क्या कहता है, work done by the system is always negative and work done on the system is always positive. Work done by the surrounding is always positive. Work done on the surrounding is always negative. याद है ये? ठीक है. Then we have also seen क्या था, ठीक है, released by the system. अगर system heat release करता है तो it will be negative. System heat absorb करता है तो it will be positive. After that we have seen pressure volume work also. What is pressure volume work? Work is equals to force into displacement वाला derivation हमने किया था. Then what is force? Force is nothing but pressure upon area. तो अगर मैंने pressure को P consider किया, sorry pressure area को D square consider किया अगर, ठीक है, तो force क्या हो जाएगा? Force will be, क्या लिखा मैंने, sorry, pressure is equals to force upon area. I'm so sorry. Pressure is equals to force upon area. So force is equals to pressure into area. ठीक है. Then after that we have substituted and we have taken out the equation, that is क्या था, W is equals to minus P delta V. इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे is V2 minus V1. ठीक है. Then after that we have done the derivation for W max. I hope W max का derivation सभी को याद है. What was the formula? W is equals to minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2, or you can also write down minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. ठीक है. So these are the two formula which we can apply over here. Then we have also seen what is free expansion. Free expansion means अगर ये जो piston है इसके ऊपर से cylinder है, इसमें से मैंने piston हटा दिया तो gases will move in all the possible direction. So that is called as free expansion, means pressure will be zero, means your work is also zero. There is no work done on the system or on the surrounding. Then we have seen different conversion factors also. पहले मैं बोल देती हूँ फिर आप लोग आपके doubts पूछना, ठीक है. फिर ये होने के बाद क्या था, W max पहुंच गए हम लोग. फिर क्या था, internal energy. ठीक है. Internal energy was represented by delta U. So U is U2 minus U1. It is a state function. It is a minimum amount of energy which is present in every system. Along with that, so if I'll say system is doing 2000 kilojoules of work, so it'll be saying delta U is equals to minus 2000 kilojoules because work is done by the system. If I'll say system is absorbing 30,000 kilojoules of heat, the system is absorbing over here, that means delta U will be positive, है ना. और क्या था, हाँ, suppose system is doing 3000 kilojoules of work, at the same time it is releasing 2000 kilojoules of heat also. What is delta U? So it is doing 3000 kilojoules of work, मतलब 3000 माइनस में हो जाएगा. At the same time it is releasing, तो ये भी माइनस हो जाएगा, है ना. तो आंसर कितना आएगा, minus 5000 kilojoules. That was about the internal energy. It is also an extensive property. It depends upon the amount of matter present inside your system. फिर क्या था, हाँ, first law of thermodynamics. What is the first law of thermodynamics? What is the first law? Law of conservation of energy. Energy can neither be created, cannot be destroyed. Only one form can be converted into the another form. Okay, that is called as first law of thermodynamics. Also, you can say the total energy of an isolated system remains constant. That will not change. Okay. So first law of thermodynamics का ये क्या था, mathematical expression delta U is equals to Q plus W. What is delta U? Delta U stands for internal energy, Q stands for heat, W stands for work done. ठीक है. Then we have seen different processes. शायद ये भी बोला था ना मैंने तुम लोग को पढ़ने के लिए, कि नहीं बोला था, जल्दी बोलो. हाँ मैम बोला था, है ना. Delta U is equal to Q plus W. We have seen different processes with respect to this
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम लोगों ने कौन से प्रोसेस किए थे? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U 0 था। देन आई हैव डन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 था। उसके बाद वी हैव डन आइसोबैरिक प्रोसेस, उसमें कैसे हो गया? W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। ये इधर सब्स्टिट्यूट किया तो P 0 हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया था? आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना, उसमें डेल्टा V 0 था। तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूट करके वी हैव टेकन आउट दी 4 डिफरेंट प्रोसेसेस। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। देन आफ्टर दैट क्या किया था हम लोगों ने? हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा U, डेल्टा H एंड ऑल दैट। सो हाँ, क्या हुआ? किसी ने कुछ तो लिखा है कमेंट में। हाँ, इंटरनल एनर्जी तक बोला था। ये भी बोला था ना शायद, एंथैल्पी वाला पार्ट नहीं बोला था? ये बोला नहीं था मैम। मिस, नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक नहीं है बोला। ठीक है, ओके ओके। चलो, इंटरनल एनर्जी तक हो गया सबका। अभी अभी मुझे बताओ क्या डाउट है। स्टार्टिंग से जाओ, फर्स्ट पेज से। आई विल टेल यू द पेज नंबर। ऑलमोस्ट मैंने तुम लोगों को ऐसा रिविजन ही करवा दिया, क्विक रिविजन। तो पेज नंबर अभी 63 पे जाओ, उसमें तो सिस्टम और सराउंडिंग का ही है। जस्ट गो थ्रू, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, नहीं तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देती हूँ, वो सॉल्व करो। चलो फटाफट जस्ट गो थ्रू, लेट मी नो योर डाउट्स। मैक्सिमम वर्क डन प्लीज एक्सप्लेन। मैक्सिमम वर्क डन का डेरिवेशन सिखाओ श्रुति। हेलो, ओके। डेरिवेशन वो तो बहुत लंबा चढ़ा है, ठीक है चलो एक मिनट रुको। वर्क एंड हीट इज एक्चुअली अ पाथ फंक्शन, ये सभी को पता है, ठीक है। दे विल ऑलवेज फॉलो द पाथ फॉलो टू रीच दैट स्टेट, बराबर है। रुको एक सेकेंड। तो अभी हम क्या करेंगे? इफ आई एम ड्राइंग ओवर योर अ सिलेंडर एंड अ पिस्टन विच इज प्रेजेंट एट दिस पोजिशन, थोड़ी देर के बाद वो और नीचे हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो और नीचे हो जाएगा। So going from initial to the final, that time we are writing delta, but over here D stands for actually में differential derivative जैसा वो होता है कुछ तो, ठीक है। So now we will do, एक सेकेंड ना, let me open that page। किधर गया मेरा पेज? maximum work done, हाँ चलो। अभी वर्क डन के लिए which formula we are going to use? We have written W is equals to minus P delta
v. So we are talking about path function, so dw is equals to minus p dv. This is the actual equation. ठीक है? So this is called as p external. बराबर है? So what is p external basically? It is p minus dp. P external is nothing but p minus dp, means main pressure minus the change in the pressure. Means when you're going one step to another step, change in the pressure will be dp. Here also change in the pressure will be dp, not your mobile ka dp. It is dp means change in the you will be writing dw is equals to क्या लिखो इधर माइनस p माइनस dp इंटू dv. ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करो माइनस p dv माइनस माइनस प्लस dp इंटू dv. इतना क्लियर श्रुति? यस मैम। हाँ, अभी ये टर्म एकदम छोटा है ना, क्योंकि आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ जा रहे हो, तो दिस टर्म इज नेग्लिजिबल, यू कैन नेग्लेक्ट दैट. आई विल बी राइटिंग योर dw इज इक्वल्स टू माइनस p dv. ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे? We are going to write down according to the ideal gas equation, PV is equals to nRT. So I will be writing P is equals to nRT by V. अब इसको इधर सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या बन जाएगा? dW is equals to minus P की जगह क्या लिखेंगे? nRT by V into dV. बोलो क्लियर? This यस part मैम। is clear everybody? हाँ, अब क्या करेंगे? We are going to integrate within the limits. अभी इंटीग्रेशन आपका जब मैथ्स में चालू होएगा तभी आपको बहुत अच्छे से सब फॉर्मूला आ जाएगा. तो इंटीग्रेशन within the limits, within the limits क्या लेंगे हम लोग? W to W max, नहीं जीरो मैक्स है ना, जीरो वर्क से W max तक. और वॉल्यूम का क्या लेंगे? वॉल्यूम V1 to V2. V1 stands for initial, V2 stands for final. चलो इंटीग्रेशन करते हैं. दिस इज 0 to W max, that is dW, that is equals to minus nRT will be common. You will be writing here V1 to V2 and that is your dV. ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था? If I'm writing A to B, dx by x is nothing but ln x A to B, ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है. ठीक है, dx by x is equals to ln stands for log to the base e, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वाला log x A to B. ठीक है, now this term I am going to use in these two formula. Oh sorry, this is dv by b. तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. I will be writing here W max minus 0. My upper limit is W max, lower limit is 0. So minus nRT पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ln v v1 to v2. ठीक है, ln v v1 to v2, ये हो गया फॉर्मूला. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ आई विल बी राइटिंग हियर W max is equals to minus nRT, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln लिखा v2 माइनस v1. अभी ln दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, so W max is equals to minus nRT ln v2 by v1. Am I right? है ना, ln v2 माइनस ln v1 मतलब log में आ गया ये. अभी I don't want this ln, I want it to convert to the log to the base 10, क्योंकि हम लोग जो log use करते हैं that is in the log to the base 10. So I will be multiplying that by minus 2.303 nRT log to the base 10 v2 by v1. Or from the combined gas equation p1 v1 is equals to p2 v2. ये पता है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, सभी लॉज को मिला के ये इक्वेशन बना था. सो आई विल बी राइटिंग हियर v2 by v1 is equals to p1 by p2. तो इक्वेशन बन जाएगा दूसरा minus 2.303 nRT log to the base 10 p1 upon p2. समझा श्रुति? और यस बाकी मैम। सब लोग भी? थैंक यू मैम। कौन? वेलकम. कन्हैया कौन सा कॉन्सेप्ट बोल रहे हो? नहीं समझा मुझे. मैम विच ये कॉन्सेप्ट? मैक्सिमम नंबर का अच्छा, आपने ओके समझा? ओके, हाँ हाँ समझा अभी अच्छे से. और कुछ डाउट है? देखो हाँ देख लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आराम से देखो. यू कैन टेक योर टाइम. अगर हो गया है तो फिर मैं समझ देती हूँ, सॉल्व करो. जो हमने किया है ना उसमें से एक दो क्वेश्चन देती हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगा. कुछ डाउट है और किसी को थ्योरी पार्ट में?
Any questions? कॉलरॉश लॉ. सिद्धेश, आता इथे ये आणि माझं डोकं फोड. कॉलरॉश लॉ कौन से चैप्टर में है? सिद्धेश, कौन से चैप्टर में है? कौन से चैप्टर में कॉलरॉश लॉ? बोलो सिद्धेश. वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं. कॉमेडी मत करो. कॉलरॉश लॉ इसमें नहीं है बच्चा. जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तभी मैं बताती हूँ. चलो, मुझे लगता नहीं किसी को कुछ डाउट है. चलो क्वेश्चन लिखो. सम का क्वेश्चन लिखो फटाफट. 2 moles of an ideal gas. 2 moles of an ideal gas are expanded isothermally and reversibly from 20 liters to 30 liters at 300 Kelvin. 20 liters to 30 liters at 300 Kelvin, full stop. Calculate the work done. Calculate the work done. R is equals to 8.314 joules per mole per Kelvin. चलो शुरू हो जाओ फटाफट. अभी 7:53. आप 5 मिनट में हो जाना चाहिए. चलो ठीक है, 8 बजे तक दिया तुम लोग को टाइम. 7 मिनट्स दिया. देखो, मैं आपको कुछ ऐसे अलग सम्स नहीं दे रही हूँ. विच वी हैव सॉल्व दैट ओनली आई एम गिविंग यू फॉर द प्रैक्टिस. फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ.
I've got one answer. प्रगति 600 कैसे आएगा? 30/20 किया 1.5 आया, log of 1.5 निकालो। इसका माइक ऑन है। भाविका प्रगति फिर से चेक करो। 2.303 फिर 2 फिर 8.314 फिर 300 फिर 30/20 वापस करो देखो। यस प्रगति, परफेक्ट आंसर। यस कशिश, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। चलो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? 1 मिनट ज्यादा हो गया। सृष्टि इट इज करेक्ट, बट वो फिर 2.2 into 10⁻² आया रहेगा। इज इट? हाँ सृष्टि, हाँ पर वो 2.0 थोड़ा ज्यादा आ गया। एक बार चेक करो। इट शुड बी 2.0। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बट वो 2.023 और 2.022 ऐसे आंसर आएगा। हाँ बराबर है, करेक्ट करेक्ट। नो इट इज करेक्ट। चलो व्हाट अबाउट अदर्स? यश, दिवेश, दिवेश आए नहीं? शिवम, प्रशांत, पवन, भाविका, अदिति, चलो आंसर लिखो फटाफट, कितना आया? से कैसे लेफ्ट हो गया था? हेलो, एम आई ऑडिबल?
Yes, ma'am. दो दो शबाना शेख कहाँ से हो गई भाई, ये क्या कंफ्यूजन है अभी। हाँ प्रगति, मुझे होस्ट करो तो। हाँ अच्छा, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो आ गया आंसर सबका। करेक्ट करेक्ट कन्हैया, वेरी गुड। फिर तुम्हारा इंटू 10⁻² है +2, ऐसा कुछ तो आया रहेगा, +2 आया रहेगा। 3 आएगा, 10⁻3 आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टेक्स्ट बुक के पीछे का देती हूँ, ठीक है, सो दैट यू विल प्रैक्टिस दैट ऑल्सो। कौन सा दूँ? रुको बच्चों, क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। डब्ल्यू मैक्स वाला एक क्वेश्चन था, किधर गया? अरे यार किधर गया? हाँ, राइट डाउन, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, calculate the maximum work when 24 grams of oxygen, calculate the maximum work when 24 grams of oxygen are expanded isothermally and reversibly from the pressure of 1.6 bars to 1 bar, from the pressure of 1.6 bars to 1 bar at 298 Kelvin, from the pressure of 1.6 bars to 1 bar at 298 Kelvin. So you will get again 7 minutes. फटाफट सॉल्व करो। आ रहा है ना सबको? सॉल्व कर तो रहे हो ना, नहीं तो पता चला ऐसे ही बैठे हैं। कुछ डाउट है थियोरी में तो भी पूछो, मैसेज करो मुझे। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करने में?
जब फॉर्मूला का लॉग रहेगा तभी एंटी लॉग नहीं निकालने का. When you are applying the log, that time you have to do the anti log also. तो 1.6 का log देखो and then you solve.
हाँ करेक्ट आंसर है, एवरीबडी गॉट करेक्ट आंसर। कशिश और कन्हैया ने आंसर किया है, बाकी सब लोग सो रहे हैं। हाँ एकदम कोई सॉल्व नहीं करे। नेक्स्ट टाइम से मैं रिवीजन लेक्चर कैंसिल करने वाली हूँ, सर को बोलूंगी सर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे लोग रेगुलर में आंसर करते हैं वही बच्चे अभी भी आंसर कर रहे हैं, और जिसके लिए था रिवीजन लेक्चर उनका तो कुछ है ही नहीं। हाँ कशिश का बोला ना कशिश, प्रगति, कन्हैया, ये लोग रेगुलर स्टूडेंट्स है, वही लोग आंसर कर रहे हैं। करेक्ट, अनुष्का दे रही। यस यस करेक्ट है श्रुति, बराबर आंसर है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं अभी। हाँ मैम। हाँ चलो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। एक मिनट, हाँ मैं क्वेश्चन ढूंढ रही थी, मुझे ऐसे ढंग का इजी क्वेश्चन मिल रहा नहीं है जो तुम लोगों का 10 मिनट में हो जाए। रुको। क्या दूं यार। W2 कैलकुलेट, V2 कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम प्रेशर कैलकुलेट करोगे, वो बड़ा वाला माइनस वाला सम था पता है, एंटी लॉग का एंटी लॉग निकालते हैं, फिर वो नेगेटिव लॉग को करोगे वाला सॉल्व। एंटी लॉग को नेगेटिव में नहीं रखते तो -1 +1 करके किया था, याद है एक सम, वो वाला दे दूं। चलो ठीक है ट्राई करो, हाँ ठीक है कन्हैया ट्राई करो। चलो 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
22 grams of carbon dioxide are compressed isothermally and reversibly at 298 Kelvin from initial pressure of 100 kilopascals. 100 kilopascals when the work obtained is 1.2 kilojoules. 1.2 kilojoules. Find the final pressure. Find the final pressure. अभी देखो इसको जो वर्क है ना, ये वर्क इसको जूल्स में कन्वर्ट करो तो 1.2 इंटू 10⁻³ करो, ठीक है। मतलब ये आपका कितना हो जाएगा 12000 तो 1200 हो जाएगा, 1200 जूल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करने का है, वो P1 P2 वाला P1/P2 वाला अप्लाई करो फॉर्मूला, ठीक है, लॉग ऑफ दिस। तो इसको ऐसे ही रखना, पहले साइड वाला सॉल्व करो। रुको मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। देखो आई विल जस्ट लेट यू नो कि W max is equals to minus 2.303 nRT log to the base 10 P1/P2। तो W max कितना था अपने पास 1200, ठीक है, माइनस 2.303। अभी n है ना, n पता नहीं है, n कैसे निकालेंगे, 22 ग्राम्स दिया हुआ है ना, तो मास अपॉन मोलार मास कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 22, मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन 12 प्लस 16 नहीं 32, 12 प्लस 32 कितना हुआ 44, 40 ठीक है। 22/44 मतलब 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5। आर अप्लाई करो 8.314, टेम्परेचर दिया है हाँ 298। और इसको है ना ऐसे ही रखो, P1/P2 को ऐसे ही रखो, अभी कुछ अप्लाई मत करो इधर। अभी क्या करेंगे, ये टर्म नीचे लेके जाओ, सो इट विल बिकम log to the base 10 P1/P2, फिर हो जाएगा माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 5 किया मैंने इसको 10⁻⁻1 किया, समझा, ताकि आपको बार में नहीं आया आंसर। 8.314 इंटू 298। अब देखो ये -1 ऊपर जाके क्या बनेगा +1, मतलब 12,000 लिखूं डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 298, समझा। अभी क्या करने का इधर पे, yes ma'am. ये माइनस ऐसे ही रखना, इसको कुछ करना नहीं है। लॉग ऑफ 12,000 निकालो पहले, फिर माइनस लॉग ऑफ 2.303, वो मेरा 2 तो गायब ही हो गया, 2.303 प्लस लॉग ऑफ 5, कुछ करना नहीं है, साइन चेंज नहीं करना, ऐसे रहने देना इसको, ये बाहर का अंदर चेंज नहीं करना, ठीक है। लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 8.314 इंटू सॉरी प्लस लॉग ऑफ 298, ठीक है। अभी पहले इसका लॉग सॉल्व करो, ऐड करो, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये साइन को ऐसे ही रखो, आपको एक आंसर आएगा माइनस, सपोज लॉग एंटी लॉग निकाल के यू विल गेट आंसर एज x, समझा। फिर हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -x हो जाएगा। माइनस का नेगेटिव ये नहीं निकाल सकते, तो अपना पुराना मेथड जो हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में किया था, +1 -1, +1 तो पहले इतना, हाँ समझा, अभी आएगा, अभी करो, देखो ट्राई yes करो, ma'am. हाँ नहीं आएगा तो आई एम हियर, डोंट वरी, सॉल्व करो।
अरे वाह, फाइनल आंसर आ भी गया, वेरी गुड। कौन है ये? वेरी गुड प्रगति, परफेक्ट, वेरी गुड, एकदम एग्जैक्ट आंसर निकाला, वेरी गुड। चलो बच्चों, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? देखो आप लोग का आंसर कितना आया रहेगा पता है क्या इसका? -0.4206 या 07 ऐसे कुछ रहेगा। ठीक है, फिर इसमें क्या करो, -1 +1 ऐड करो, -4206 -1 +1 ऐड करो, तो +1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, बराबर ना प्रगति? +1 माइनस 0.4206, इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर उसका एंटी लॉग निकालो, फिर आंसर सबका आ जाएगा। अभी हम लोग जब भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ना, मंडे को ना बच्चों, शायद से मैं इवनिंग में आपका लेक्चर नहीं ले पाऊँ क्योंकि मेरी बहन की शादी है, तो मैं किसी एक और दिन ना रिवीजन लेक्चर लगाती हूँ थर्मो का। ठीक है, कल इवनिंग में तुम लोग को किसका लेक्चर रहता है? 7:30 बजे, 8 बजे लगाओ कल लेक्चर शाम को। चलेगा मैम। 8 बजे कल चलेगा ना? पूछती हूँ सर को, अगर प्रथमेश सर नहीं ले रहे होंगे तो मैं थर्मो का ही रिवीजन कल ले लेती हूँ, क्या बोलते हो? 8 से 9 1 घंटा ले लेती हूँ, क्योंकि मंडे चलेगा। का तुम लोग का लेक्चर मिस होएगा, क्योंकि मैं उस दिन छुट्टी पे हूँ पूरा दिन, मेरे घर पे शादी है। ठीक है, तो देखते हैं, वैसा करते हैं, सर के साथ बात करती हूँ। हाँ, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी मैसेज, बराबर, आई विल पुट इट इन द ग्रुप, ताकि मेरा स्लॉट कोई ब्लॉक नहीं करे। चलो आ गया आंसर सबका, कितना टाइम लगा रहे हो? हाँ, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? हाफ पार्ट जो हमने किया अभी, कल अगर हमारा रिवीजन लेक्चर होता है तो व्हाट वी विल डू, आगे का सब पार्ट कर डालो सेकेंड लॉ तक पूरा। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वो सब तो थ्योरी है, 10 मिनट में ही तुम लोग का पढ़ के हो जाएगा। और उसके बॉन्ड एंथैल्पी वाले न्यूमेरिकल्स आई विल टेक। ठीक है, जिन लोगों ने मिस किया वो लोग ही ओके। नहीं आते हैं लेक्चर को, बाकी के जो बेचारे रेगुलर है, जो मर मर के लेक्चर्स में आते हैं, वही बेचारे बच्चे हैं। जितने लोग हैं वही है, अदिति, कन्हैया, आदित्य, कशिश, ऋषि, साक्षी, ये सब रेगुलर बच्चे, यश, शिवम, यही लोग आ गए, बाकी लोग आए ही नहीं। और अभी 19 जन थे, अभी 16 हो गए। चलो ठीक है, शुड आई स्टॉप नाउ? ये कर लो, सम नहीं आएगा तो टुमारो आई विल टेक। 8 बजे लेती हूँ लेक्चर, 8 से 9। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू टुमारो। कल मॉर्निंग का लेक्चर नहीं रहेगा, हाँ, देयर विल बी नो लेक्चर इन द मॉर्निंग, मैं ग्रुप पे डालती हूँ। देयर विल बी लेक्चर इन द इवनिंग 8 to 9, रिवीजन लेक्चर पार्ट 2 थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे डाल देती हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय, वेलकम, बाय।